ओके। तो कहाँ पर छूटे थे? मैं बताया ना, आज हायरसेल बहुत अच्छा एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। कभी You इंटरनेट को, said, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी। yeah, you said we are connected but disconnected. Look at the meditation. Even though we were disconnected, we guys are all still in the group. No, it's a attachment and detachment. या बार बार यस। वॉइस जा रही है, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, बार बार ऐसा ही हो रहा है सर। तो आप लोग ध्यान कर रहे हो कि ये सब देख रहे हो? ये सब मत देखो, ध्यान के अंदर खो जाओ. इट्स नाउ टाइम टू गो इनटू डीप सिचुएशंस नाउ. जी। यस, एक्चुअली now let me ask you one question. When you are disconnected, you are really disconnected, or you were connected with your higher self, and some part of was delivered through me, some part was delivered through higher self. आपने एक्सपीरियंस किया नहीं किया आज? जस्ट किया सर, सर किया। Yes, sir, I got connected with my higher self. तो वो जंप हुआ था, नहीं हुआ था कि आप एक माउंटेन की पीक से दूसरे पे जंप कर रहे थे, और इन बिटवीन आपको लग रहा था नो फिजिकल कनेक्शन, आपको लग रहा था कुछ भी नहीं, बट स्टिल यू आर कनेक्टेड। Yes. Yes. सो आपको क्या लगता है, ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कंप्यूटर का प्रॉब्लम था, या प्रैक्टिकल आपको दिखाना था? Yeah, practical lessons, there was invisible connection. यस, ये एक्सपीरियंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक मेडिटेशन में, वेयर दिस वन लेडी हु वाज इन अ डजंट नो हिंदी एट ऑल, शी नोज ओनली तेलुगु, started the meditation. The entire session happened, she got disconnected after 5 or 10 minutes, and even when we completed our meditation, she came online and she said, I don't know, I was able to listen to you. How is possible? Because you never listen to your other person, you always listen to your higher self, and you have already inbuilt capability within this physical device. When you are dreaming, you don't hear, like everybody is not speaking as you, their tone is different, everything is different. Then how, if you have your own unique voice, then how you are able to hear other voice also? Don't you think there is some drama there? Don't you think this voice is created within you? Do you think what is my original voice? You are hearing that voice, or you are generating some voice within your reality, what you already have in your device? Think of a keyboard, musical keyboard. Think of a DAW software where you create the computerized music. Everywhere you see the everything is a through computer. You are through program. You are generating the voice. So the message comes from your higher self, and then he select character who is going to talk to you, and the different voice in the system, and telecast started there. When you're thinking, oh, I'm seeing this, that, this, that, this. See the 3D movies, cartoon movies. Yes. So these all characters you have chosen in your life. Their voice, everything is already before you started the physical reality game. This is all your voice. So if you understand now your power, you are the creator. Or if you think higher self is different, then you can say you are the co-creator. Because your higher self and you both are creating.
But if you think we are one, then you can be a creator. That's the difference. So what do you want to be, a creator or co-creator? क्या बनना है? Creator, sir. Creator. क्रिएटर सर। Creator. तो बीमारी चाहिए नहीं चाहिए रियलिटी में? नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। तो रिपोर्ट देखोगे नहीं देखोगे? टेस्ट ही नहीं कराएंगे तो रिपोर्ट क्या देखेंगे? नहीं, टेस्ट कराओ, लेकिन पहले रियलिटी क्रिएट करो ना। हाँ हाँ, पहले रियलिटी क्रिएट। थिंग्स आर इम्प्रूविंग, एवरीथिंग नॉर्मल, जाओ रिपोर्ट करा के आओ, रिपोर्ट नॉर्मल, माइंड को मालूम पड़ जाएगा, फिजिकल माइंड को एवरीथिंग नॉर्मल, माइंड बिलीव करने लगेगा, माइंड बिलीव करने लगेगा तो रियलिटी क्रिएट होने लगेगी। जी सर। तो आज से अपनी सारी रिपोर्ट को चेंज कर दो, और कभी भी टेस्ट कराने के लिए जाओ ना, नेवर थिंक इन दैट डायरेक्शन, ओ पता नहीं क्या निकलेगा। पहले से बोल दो मुझे पता है, मैं ही तो क्रिएट करने वाला हूँ, ये निकलेगा। बी इन दैट वाइब्रेशन, बी इन दैट अवेयरनेस, और अवेयरनेस के अंदर एनर्जी डालो, उस स्टेट में रहो, बी परफेक्ट। और अगर आप मान लो क्वांटम जंप नहीं ले पाए उस रैली तक, कोई बात नहीं, वापस आओ। somebody suggests you some tablet and take the tablet but not with the thing, just say okay एक टेबलेट लूंगा। कितने ही लोगे आप में से, आई कैन बेट ऑन दिस, आप लोग बोलते हो, इतना सा बोलते हो, 3 दिन का डोज लेके आते हो, और अंदर से आता है, एक आपका बिलीफ होता है, अरे यार मैं मेडिसिन तो लेके आ जाती हूँ डॉक्टर से, लेकिन वो प्रॉब्लम ही गायब हो जाती है 1 दिन के डोज में। क्या है ये? क्वांटम जंप। और वाकई ऐसा ही होता है, आपके एयरसेल पे बुला देते हैं आपको टेबलेट खाने के लिए, और आप देखते हो प्रॉब्लम मालूम ही नहीं होती है, आपको लगता है ये पेन मेरे को बहुत सालों से है, आपने एक विजुलाइज किया, उसके बाद में एक टेबलेट खाई पेन किलर, हो सकता है ये पेन किलर लास्ट हो, बिकॉज यू आर इन अ स्टेट वेयर यू आर नॉट फीलिंग एनी पेन, यूज दैट स्टेट टू रीच वेयर यू वांट एंड वेक अप फ्रॉम दैट मेडिटेशन विद द सेम थिंग कि यस ऑलरेडी डन। फिर बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करो जैसे आप भाग रहे हो, डोंट थिंक, वापस से वो मेंटली मत आ जाओ कि अरे यार फिर ये होगा वो होगा, फिर वो एनर्जी स्टेट, अवेयरनेस की स्टेट चेंज होगी, तो डोंट चेंज इट। So now think of a Manikaran event. बोलो क्या रियलिटी क्रिएट करना है, क्या सुनना है अपनी रियलिटी में। सबके लिए अलग अलग वर्जन क्रिएट होने वाले हैं, सबके लिए अलग अलग, किसी की भी रियलिटी अलग नहीं होगी। और आपके एयरसेल हमेशा सुनाते हैं, आप कहते हैं ना यार पार्टी तो इतनी अच्छी, शादी हमने तो इतनी एंजॉय करी, फिर एक बंदा आके हेयरसेल आपके एक बंदे को इंट्रोड्यूस करेंगे, वो बोलेंगे क्या पार्टी में यार सब्जी नहीं थी, वो नहीं थी, वो नहीं थी, वो नहीं थी, क्या था? उसकी रियलिटी उसने क्रिएट करी जो आपको सुना रहा है, आपकी रियलिटी होती जो आपकी रियलिटी में क्रिएट हुआ। आपके हेयरसेल सिर्फ दिखा रहे हैं आपको कि सी द डिफरेंस इन द रियलिटी, सेम इवेंट, सेम इवेंट, सेम पीपल, सेम डिशेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, यही तो गॉड कर रहा है हमारे थ्रू। जैसे सर कई Don't लोग judge. बोलते हैं उस शादी में खाना बड़ा टेस्टी था, बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। और कई लोग ऐसे भी बोलते कुछ टेस्ट ही नहीं था, मुझे ही नहीं अच्छा ही नहीं लगा। तो वो उनके ऊपर है ना, उनकी रियलिटी। वो जैसा सोच रहे हैं, जैसे एनर्जी में खा रहे हैं, वही को फील कर रहे हैं। वो सबका अलग अलग मतलब है। लड़का लड़की के माँ बाप को इतना प्राउड है, उनको लगता है अकेला सब कर लेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। तो पता है क्या है, जो एंजॉय करने वाले कहेंगे यार वो तो बहुत मस्त इंसान है, उनको तो फिक्र ही नहीं है, पार्टी में तो मस्त मजा आने वाला है। तो एक एक सीन क्रिएट कर जा रहा है उन लोगों के लिए अलग रियलिटी में, और एक सीन क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों के लिए, इनको मिलाया जा रहा है वो पेरेंट्स के उस वर्जन से जो परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल अंधेरे मतलब कमरा है, कोई नहीं, चुपचाप है, और इनको वहां डोर के पास कान लगा के सुनवा रहे हैं, जाए बात कर रहे हैं। क्यों है वहां पे वो, क्यों है वहां पे वो, क्यों? क्योंकि उनको रियलिटी में वो देखना था। बाकी लोग क्यों नहीं? क्योंकि उनको वो नहीं देखना था। दैट्स व्हाई आई सेड एवरी इवेंट को डिफरेंट परसेप्शन के साथ, डिफरेंट बिलीफ के साथ गॉड एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड वी ओन अवर ओन रियलिटी के हम रेस्पॉन्सिबल है।
to create your own reality the way you want, not what others say or what you listen. What you listen is just the saying that, yeah, this might happen. So you say, okay, I don't want to create this reality. Let it go. This is what I want. Focus on that. See, in a Marikern event, big crowd, lot of energy, angels are appearing in that place. People are very happy. Finally, you are having one meeting. You are meeting the team, and everybody is like full in an energy state. And you are seeing, oh, I saw this, angels, I saw that one, I saw that divine, I saw that power, I saw that magic. Yes, create the magic. Be the creator. Because it's your own reality. What you experience, maybe no one else experiences. Sir. Yes. And believe in that. Herself will test you. The moment you manifest, this is coming, and all of a sudden there will be tests will come in, say, hey, sir, nothing is working there, this, that people are not coming. He said, hold on. Just say, don't worry, things will move. Take your physical action. Now just say, okay, angels, please take care. I know you are going to take care of them. Just keep creating the magical reality. Then some other person will come. He'll say, hey, this is this happening. Hold on. Okay, don't worry, angels. I already asked angels, they will take care of that. Go and take the physical action. That's all. Pass all the tests. Your mind will believe, oh, wow, this is what going to, like we are going to witness it. That's all. The moment your mind believed in this, yes, then keep taking your action without any resistance or insistence. Keep working. Don't think how it will happen, who will do what and anything. Don't worry. If no one is doing, angels will take a human form and do it. They will enter into someone else's body and do it. Don't worry about that one. Your higher self can create any magic there to make the happens whatever you just now dreamed of. So if any if but comes, hand over to the higher self. You say, I know you take care, you are going to take care of those things. So please take care. Let me know what action I have to take. Your higher self will say, just be in that vibration, that's all. Because reality already got created. Output is already exists. You are not going to create anything. You be in that vibration, you are going to attract this quantum science, quantum leap, quantum jump, leap of faith. सब सुने हैं ना, प्रैक्टिकल कर लो, and you will see the magic. Yes, any question or anything? Thank you, sir. Sir, can we get the recording of this? Really, I don't know. Let's see what I self has created. I just want to see whether it will be available or not. Let divine decide. But I know whatever people supposed to listen, they are going to get the message 100%. 100% they will have it, whatever they need to know. Because that's a commitment from your higher self. In now moment, whatever you need to know, whatever data you need, whatever people you need, whatever logistic you need, whatever money you need, whatever other things you need will be provided to you. That's the promise. तो हर उस इंसान के लिए वो चीज मिल जाएगी जिसको उनको चाहिए इस पल में एक्शन लेने के लिए 100% आती है वो. I want to say something, Dinesh ji. Yes. I had two experiences I wanted to share. I told you one of my family members was not in touch
So when I was meditating, I created the reality as if the person is already in touch, and I started thanking higher self that thank you for arranging for me to meet that person. And then I started thanking, I know you're working on it, and I'm very grateful. I know I will be meeting that person soon and having a great relationship. So I started being in gratitude and thanking during praying, and while praying, and also while meditating from last couple of days. And the person just showed up. Yahoo! Yeah, the person just showed up and stayed with me, and we spent quality time. I was like, wow, as if like nothing happened. So we reestablished the connection. That was number one experience. So today, I mean, I have two phones. So one phone I had left it home, and then I was going to work. On the way, I realized, oh, my second phone is not there and I needed it. So I go back and I'm looking for it, and I don't find it. It's on silent. So even if I call, it doesn't ring. So it's like, I mean, it's there, but I don't know where it is. So suddenly I remembered, hold on, let me talk to my higher self. Then I said, okay, higher self, I know you're going to help me find it. I know you know where the phone is. You're going to guide me. And I was just creating those thoughts in my mind. And suddenly I see, I would have never seen that. I would have never imagined that. I almost started going back. I says, no, higher self is helping me. I'm not in control. Higher self is in control. Then suddenly I see between the trash can and the wall, my phone had fallen there. And I found it. I was like, wow. So these are my two experiences I had when I put my trust on the higher self. मैं कह रहा हूं ना, वो जो सरफेस जो नीचे क्रिएट कर देते हैं वो अपने आप आपको वहां पहुंचा देते हैं जहां पर आपको होना चाहिए उस चीज के लिए। और आपको मैं एक बात बताऊं, ये पूरी जो फिजिकल रियलिटी ना, इसको लेयर्स में बनाया गया है। लेयर्स मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अर्थ में आप अगर एक छोटा सा स्पेस भी नीचे जाते हो ना, यू एंटर द डिफरेंट डायमेंशन। हम्म फिर थोड़ा सा मूव होते हैं, नाउ मूवमेंट में आपकी वाइब्रेशन चेंज हुई, यू आर इन, आपको लग रहा है माइंड से कि मैं ऊपर की फ्लोर से नीचे जा रहा हूं हम्म जो, लेकिन यू आर शिफ्टिंग द डायमेंशन देयर। या लोग कहते हो सुनेंगे अर्थ इज फ्लैट। या ने उस लेवल पे एक्सपीरियंस कर लिया होगा, वो इंसान तो यही कहेगा कि सारी डायमेंशन ऐसा प्लेन पे है, मैं फ्लोर पे नहीं जा रहा हूं, तो टोटली वो डिफरेंट अर्थ हो जाती है। हर उस पे जाते हैं तो डिफरेंट हो जाता है, जो प्लेन मेरे को दिख रहा है ये पूरा डिफरेंट होता जाता है, रियलिटी पूरा नीचे ऊपर डायमेंशन में ऐसा मूव होता रहता है। तो हमें लगता है नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस क्रिएट हो रहा है, बट एवरीथिंग इज लाइक फिजिकल रियलिटी इन योर डायमेंशन, सेम डायमेंशन में सब कुछ ऑपरेट हो रहा है, सब चीज, हर चीज उसी एनर्जी स्टेट में जिसमें आप सोच रहे हो। हर इंसान, अर्थ का वर्जन, सब उसी सेम वाइब्रेशन में रहता है वो। तो दीज आर एक्सपीरियंस। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग अर्थ के अंदर जा रहे हैं, ऑल अ सडन वो डिफरेंट रियलिटी ओपन हो जाती है। क्यों नहीं होगी, डायमेंशन अलग है। अगर किसी ने, कोई एग्रीड पोर्टल है, किसी ने खोला हुआ है, उनको लगता है कि इस पोर्टल के इधर से उधर जाते हैं आप नई रियलिटी में हो जाते हो, तो क्वांटम जंप हो जाएगा वहां पे। तो क्या आप क्या वाकई अर्थ के अंदर जा रहे हो? नहीं, अर्थ के अंदर नहीं जा रहे हो। आपने नहीं देखा, अपने मूवीज में दिखाते हैं ना, एक घर के अंदर एंटर होते हैं और जैसे ही दूसरे घर में वो शूटिंग करते हैं, दूसरे घर में आप एंटर हो रहे हो, बिल्कुल वैसा ही होता है ये। हम्म ऐसे ही चेंज करती है कि आपको लग रहा है कि बंदा कार से खड़ा हुआ है, घर के अंदर एंटर हो रहा है, लेकिन जहां पर शूटिंग हो रही है अंदर की, वो अलग घर होता है। इज नॉट द सेम हाउस। या और आपने एक और बात कही कि वो आई डोंट नो, इज इट कॉल्ड क्वांटम जंप? कैन यू से मोर ऑन दैट? वन ऑफ माय एक्सपीरियंस वाज, इट हैज हैपेंड सेवरल टाइम्स। लेट्स से, ओ माय गॉड, मुझे खांसी होती है, मुझे ये होती है, डॉक्टर के पास जाती हूँ। वो पता नहीं, डॉक्टर के पास जाके जस्ट मीट करके बात करके आते हैं, वो मेडिसिन देता है, मेडिसिन पिक भी नहीं करते हम फार्मेसी से, ऑलरेडी खांसी इज गॉन। इट हैज हैपेंड सो मेनी टाइम्स। अरे मैं तो गई वो प्रॉब्लम से,
ना मैंने उसका ट्रीटमेंट लिया, कुछ भी नहीं किया, ये अपने आप चला गया, अब बताओ, सो हाई सेल्फ आपको वही सुना रहे हैं और आपको भी याद भी दिला रहे हैं कब क्या हुआ था, तो समझ में आ गया ना? या में आ गया ना, गेम खेला, समझ में आ गया ना बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। so what happened here? Quantum jump is हमारा बस बॉडी I mean nothing happened, no treatment, but everything got fixed on its own. सारे लोगों का बिलीफ होता है कि यार मैं तो डॉक्टर, क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास, यार क्या जाऊं, डॉक्टर के यहाँ जाता हूं तो बीमारी खत्म हो जाती है। तो आपने एक Yeah. लिया, माइंड ने उस पर विश्वास कर लिया, एक दो बार हो गया, विश्वास हो गया, अब जाओगे, खत्म। क्वांटम जंप, बोलते रहो 1 बिलियन टाइम पर सेकेंड बियॉन्ड योर माइंड इमेजिनेशन, इतना जल्दी चेंज होता है। जस्ट अवेयरनेस को उस एनर्जी स्टेट में ले जाओ जो आपको रियलिटी चाहिए। And the most of the meditators or the people in physical reality, they are limiting themselves with their own. Hmm. स्नेहलता मैम, यस, थैंक यू सो मच मास्टर, आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। मास्टर नहीं, डिवाइन सोल बोल दीजिए, हटा दो मास्टर। मास्टर हाँ में जी। नेगेटिव एनर्जी आती है मैम। ये वर्ड पत्री जी ने ही दिया है, इसीलिए हम सब मैंने क्या मास्टर, बोला? इसलिए मैं उस वर्ड समय यूज उस करती हूँ समय मास्टर। उस समय पॉजिटिव एनर्जी थी, इस समय नेगेटिव एनर्जी उसको छा गई है मास्टर में। वी ऑल आर डिवाइन सोल्स हियर। ओके ओके। देखो एक बात समझिए, स्नेहलता जी, आप एक बार समझिए, जी आपको नर्सरी क्लास में एबीसीडी सिखाई जाती, करेक्ट? जी। और सेकंड उसके बाद नेक्स्ट क्लास में वही सिखाया जाता है या अलग? नहीं, अलग सिखाया जाता है। लेकिन अगर आप उस क्लास से बाहर ही नहीं आना चाहो तो मेरी ग्रोथ नहीं होगी। तो हमेशा याद रखो, हर गुरु आपको एक स्टेप चढ़ाता है और आप गुरु ओके अट्रैक्ट करते हो बेस्ड ऑन योर स्टेट, जहां आपको जाना है। या जैसे आपको पता है मुझे फर्स्ट क्लास में जाना है, आप उसके एक जस्ट पहले वाले स्टैंडर्ड में हो। जब आपने सोच लिया मुझे ग्रेजुएशन करना है, तो आपने ऑलरेडी क्वांटम जंप सेट कर दिया है, तो आपके हायर सेल्फ फिर वो क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार पीछे लुक बैक करते रहोगे, वहीं पे अटक जाओगे, तो वो एक थ्रेड क्रिएट हो जाती है जो आपको रोकती है। तो वो जी। थ्रेड को सबको कट करो, कोई कहीं नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, और जो इस अर्थ के ऊपर नहीं है वहां तो बिंदास हो जाइए आप, क्योंकि वो ऊपर सारे बात कर रहे हुए हैं। अभी पता है वहां पे क्या होगा, ऐसे आप जो बोल रहे हो ना, पत्री जी ऐसे बैठे होंगे और आपकी सोल बैठी होगी और दोनों बातें कर रही होगी। वो देखना, वो बॉडी है ना, मतलब आपकी सोल है वो बात कर रही, देखो वो बॉडी है ना, वो अभी भी उलझे हुए, मैं तो निकल गया वहां से, देख लो अभी भी वहां उलझे हुए, देख लो अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। फिर पत्री जी क्या करेंगे, वो जो भी डिवाइन सोल जिसको ये पता है उसको आपके लाइफ में भेजेंगे, बार बार वो आपसे कहलवाएंगे निकलो, निकलो। तो कौन बोल रहा है ये? क्योंकि वो भी फंस गए ना आपके चक्कर में। वो भी वो भी तो मतलब फंस गए इसलिए क्योंकि उनको पता है यार ये तो अटक गए वहां पे। ओके तो वो भी यही चाहेंगे कि यार यहाँ से निकालो। तो अब आप देख लो, क्या आप चाहते हो कि वो बार बार कहीं ना कहीं से आपको मैसेज दिलाते रहें, या एक बार में मैसेज समझ गए? ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप और सब ऊपर ही है, वहां पे ही है, और वहीं आपको जाना है। तो कोई भी कोर्ट किसी से भी मत करो, हमसे भी मत करो, किसी से भी मत करो। अटैचमेंट, अनकंडीशनल लव रखो, लेकिन अटैचमेंट नहीं। टीचर से प्यार मत करो, अटैचमेंट मत पाल लो कि मेरे को तो 10th में बार बार फेल होना है, टीचर पसंद है, ऐसा नको करो। जी जी। थैंक यू सो मच आपके गाइडेंस के लिए। और आज का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि स्टार्टिंग में मुझे कैक्टस ट्री दिखाया जिसमें बहुत सारे कांटे हैं। और उसके बाद जैसे कहा पहाड़ से नीचे कूदो, तो जब मैं कूदी तो और एक पहाड़ नजर आया, उस पे मैं गई। और उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट जब नीचे कूदी तो बहुत सारे पेड़ थे वो पहाड़ों में, तो वो पेड़ों के ऊपर से मैं जैसे स्लाइड करते हुए मैं एक रिवर बैंक के यहाँ लैंड हो गई। क्या समझे, और सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इसका? नहीं पता। एग्जैक्टली जो आपको बताया था वही सिंबॉलिक मीनिंग है,
कि आप पहले आपने एक रियलिटी के क्रिएट में कैक्टस क्रिएट किया हुआ था आपके, फिर आपने यहाँ से अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना शुरू किया। आप माउंटेन पे थे, इन बिटवीन माउंटेन, यानी कि आपको लगा कि मैं शायद वहां नहीं पहुंचूंगी, फिर भी आपके लिए लैंड तैयार थी। फिर आपने दोबारा जंप किया। आप देख रहे हो कि स्लाइडिंग एयर ये सब अपने आप क्रिएट हो गई, और आप बिल्कुल स्मूथली जा रहे थे वहां पे जहाँ जाना है। तो ये एग्जैक्टली यही सिंबॉलिक रूप में दिखाया है, ये विजुअल्स का मीनिंग। ओके। ओके। एंड मेरे बॉडी में बहुत वाइब्रेशंस हुए, बेसिकली हेड टू शोल्डर पार्ट में बहुत वाइब्रेशंस फील हुए। और मुझे थ्रोट चक्रा में हीलिंग फील फील हुई। हाँ, थ्रोट चक्रा में जो हीलिंग हो रही थी वो इसलिए हो रही थी क्योंकि आप अभी तक बोल रहे थे मेरे को ये वो है, मेरा ये प्रॉब्लम है वो है। इसको थ्रोट चक्रा को आप अनकंडीशनल लव में नहीं लेके जा रहे थे, और अभी भी आप सोचते हो कि सब चीज मेरे ऊपर ही है, मुझे ही करना है। मैंने आपको पहले ही कहा था कर्ता भाव से हट जाइए। कर्ता भाव में हर रहने वाला इंसान के शोल्डर पेन जरूर आता है। एंड उसके बाद मैं देखा कि बहुत सारे लोग हैं, और सब ऐसे एक लाइन में खड़े और ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, और मतलब है। और उसके थोड़ी थोड़ी देर बाद लिटरली देखा कि बहुत ऐसे कैंची की तरह पूरी कॉर्ड्स कट हो रही हैं, बहुत ब्यूटीफुली वो कॉर्ड्स कट हो रही थी। वेरी गुड। अ, और उसके बाद मैंने खुद को देखा, एक मतलब पूरी वाइट लाइट मुझे मेरे आसपास नजर आई। यस, सोल की लाइट, हायर सेल्फ की लाइट। कोड बस, कटिंग आगे के वाले पतंग को जब तक बांधे रखोगे ना नीचे जमीन पे फिजिकल वर्ल्ड की चीजों से, हम्म, एक लिमिट तक ही उड़ेगी। अगर उड़ना है ना, कोड कटिंग कर दो पतंग की, फिर देखो जी आप जी। पतंग कहाँ जाती है। तो आप सबने, काफी लोगों ने, मतलब फिजिकल रियलिटी मन में बांधा हुआ है, क्योंकि हम इस फिजिकल रियलिटी को रियल समझ के बैठे हुए हैं। अब पूनम जी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? हाँ सर, जी। बहुत अच्छा। और मेरे ऊपर पूरा लगातार वाइट कलर लाइट आ रहा था, और मैं अपने सिटी से लेकर मैंने पूरे यूनिवर्स तक वो वाइट लाइट को फैलाया है सर। और इतना तेज प्रकाश था कि जब आप एकदम प्योर लव एंड लाइट में रहते हैं और ध्यान से वापस आते हैं फिजिकल बॉडी में, तो आंखें भी खोलना नहीं होता है सर जल्दी से। और पूरा ऐसे लग रहा था कि बॉडी तो है ही नहीं, सिर्फ लव एंड लाइट का प्रकाश है। और उसे मैंने सब तक पहुंचाया है, तभी ध्यान होता है। और सर एक चीज और बोलना चाहती हूँ मैं, कि जैसे अभी हम लोग काफी टाइम से ध्यान में हैं, तो सबको ये पता चल गया कि हमारी बॉडी को हमको कैसे रिलैक्स करना है, कैसे बैठना है। तो जब भी ध्यान करवाया जाता है तो हर एक डिवाइन सोल फिर से वही प्रोसेस करवाते हैं, ऐसे बैठो, ऐसा करो, ये करो। तो अब ये लगने लग गया कि ये तो प्राइमरी स्टेज है। जब बच्चे को बैठना स्कूल में सिखाया जा रहा है, तो अब हम ये सब सिखाते हैं कि ऐसे बैठो, ये करो, ये करो। पर अब हम ये सब सीख चुके हैं, तो इसके आगे का हमें बोलना चाहिए। मतलब हमारा उतना ही टाइम बचता है, 15 मिनट बच जाते हैं, और हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये कल से थॉट आ रहा था मुझे कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब आपको जैसा ठीक लगे। तो यही लगता है मुझे कि जैसे आपने बोला बॉडी को रिलैक्स करो, तो 10 से 15 सेकंड में हम लोग रिलैक्स हो जाते हैं सभी। इतनी तो प्रैक्टिस हो चुकी है सबकी। तो इस प्रोसेस को जल्दी से कर दिया जाए और आगे बढ़ जाया जाए। तो ये एक मैसेज देना था सर। बाकी सब बढ़िया। ध्यान पर बहुत ही अच्छा चालू है रोज। अब तो खुली आंखों से भी ध्यान ही शुरू है, और क्रिएशन शुरू है सर। क्या परिवर्तन होना चाहिए, क्या कोई क्रिएट करना ही शुरू है अभी मेरा। क्या ओके। बोलते हैं आप डिवाइन सोर्स, आपके क्या विचार है बताइए। ये पूनम जी बार बार गायब होते रहते हैं, पता नहीं नहीं इनको तो बॉडी कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। तो मुझे लग रहा है इनकी बॉडी को अपने को स्थिर कर देना चाहिए, राइट? मेरे लिए बोल रहे हैं सर? और आ गई है। अब पूनम जी गायब नहीं होंगे। हाँ हाँ हाँ, अब बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बहुत डिस्टॉर्शन आता है, तो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। वो मैनिफेस्ट यही करती है ना, मेरी बॉडी गायब हो गई फिर
मुझे सब बोलते हैं आप कहाँ गायब हो जाते हैं, तो फिर मुझे भी आता है कि मैं कहाँ गई, मैं क्यों नहीं तो गई। मैनिफेस्ट किए मेरी बॉडी गायब हो जाए फिर वापस से आ जाए, तो वही हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये साथ में इनको प्रणाम, जो बैठी हैं। यस यस। नमस्ते 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 अम्मा। आपको पता है 14 आवर्स ध्यान जो आप बात कर रहे हो ना, हाँ जी। कम से भी कम 8 आवर्स तो बैठती है, लेकिन इनका दिल अंदर से करता है कि मुझे लेटना है तो लेट जाती है, बैठना है सुनती रहती है लेकिन। ग्रेट ग्रेट। और इंस्पायर इंस्पायर कर रही हैं हमें। हाँ, इनका नंबर बता रहा हूँ, सिर्फ 80+ है ये। और ऐसा कोई काम नहीं, इनको बोल दो मम्मी ये काम मत करो, पक्का करते हो। और यही कहती है मैं तो जवान हूँ। पता है जिस दिन अपना 14 घंटे का ध्यान होता है ना, तो मम्मी 7 बजे नहाकर पूजा करके रेडी हो जाती है। ओहो हो। तो चलो और रेडी होकर बैठ जाते हैं हमसे पहले ही वाओ। उनको। Wow, great. ठंडी, ग्रेट ग्रेट। ऐसा नहीं कि ठंडी अभी मैं नहीं नहाती, ऐसा कुछ नहीं, तुरंत रेडी हो जाते हैं। वेरी नाइस। इसलिए कहता है ना, एज इज जस्ट अ नंबर। यस। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि स्टार्ट तो वो डैडी के डायबिटीज से स्टार्ट होके देखिए कहाँ 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 तक पहुंच गए, और कितना सुंदर है। सारी प्रोसेस बहुत बहुत सुंदर लगी, और बहुत आई एम श्योर कि मैं जो गोलियां खाती हूँ कुछ 2-3, तो वो भी हट गई गई। आज तो गई। आज तो मैं पूरा उनको बस सोच दिया, थॉट थॉट दे दिया, जाओ टाटा बाय बाय। तो लेकिन सर वो जो जब आपने कहा ना कि गुरु, मेरे को ना पीछे बैक में पूरा वो लग रहा था कि वो पुल है, क्योंकि लाइफ में बचपन से ही हमारे घर में गुरु आते रहे हैं, और पूरी लाइफ में अभी तक एक गुरु के बाद एक गुरु के बाद एक। तो उनकी उनसे काफी कुछ सीखा, वो आए ही इसीलिए लाइफ में कि उस टाइम मुझे वो चीज की जरूरत थी। तो बहुत बहुत सब साधनाएं की सब, लेकिन उस टाइम वो बहुत अच्छा लगता था वही। तो अब अब अचानक आपके साथ मुलाकात हो गई, तो लेकिन फिर उस कॉर्ड को कैसे काटें? वो पीछे पुल लग रहा था, मैंने काट में, लेकिन एक अंदर से आ रहा था कि गुरु के साथ कैसे काटें। काफी सारे गुरु मेरे को सर्कल में दिखाई दिए जो भी अभी तक आए हैं, और पीछे पुल लग रहा था कि वो थ्रेड्स ऐसे थे उनके साथ। तो लेकिन आपका इंस्ट्रक्शन और हायर सेल्फ का इंस्ट्रक्शन, तो मैं काटती गई। दूसरा है, घर के साथ भी मोह है, बच्चों के साथ भी है, वो भी है, उनको भी आज कर दिया ऐसे। तो लेकिन जो अभी जिनसे हम सीख रहे हैं, तो आपने अभी बताया कि उनके साथ भी आपको मोह नहीं रखना चाहिए, अनकंडीशनल लव रखना लव चाहिए। रखना, अनकंडीशनल लव होता है ना, हाँ तो जी। आप हमेशा उनको एक ऐसे परमात्मा वाले स्थान पे ऑलरेडी रख चुके हो, समझो आप मेरी बात। अनकंडीशनल लव यानी परमात्मा का स्थान। तो आप जैसे कार्मिक है, अगर आप बोलो कि नहीं वो मेरा कार्मिक है, कार्मिक है, कार्मिक है, आप अभी भी लो वाइब्रेशन में अटके हुए हो। हम्म, तो जिस दिन आपने अपने कार्मिक को भी अपना गुरु समझ के अनकंडीशनल लव दे दिया ना, वो उस स्थान पे चल जाएंगे। बहुत ब्यूटीफुल। आपके यस। साथ पार के कैरेक्टर उस स्थान में बैठ जाएंगे, जो भी आपको सिखा रहे हैं लाइफ में। हम्म। आप वो अनकंडीशनल लव सबके लिए हो जाओगे, खुद के लिए हो जाओगे। और फिर आप देखोगे कि आप खुद बन गए, हायर सेल्फ बन गए। फिर वहां से कहाँ जाओगे? वहां पे आपका जो फिजिकल रियलिटी का इस समय का जो एक्सपीरियंस है, वो एक पड़ाव पूरा हो जाता है। अब बोलोगे इसके बाद क्या है, मोक्ष हो गया तो उसके बाद क्या है? मोक्ष हो गया उसके बाद भी ये है। क्योंकि जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था तो मैं सोच रहा था यार ये प्रोग्रामर है बैठा ऊपर वाला, और इसने ये सारी रियलिटी क्रिएट करी है। तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट करना शुरू हुआ। मैंने हरसेल्फ को यही बोला था, मैंने कहा देखो मैं क्रिएटर हूँ। दिन से मैं कहने लग गया कि कनेक्ट टू सोर्स एनर्जी। मैं कभी भी नहीं कहता उस गुरु से की एनर्जी से कनेक्ट, मैं हमेशा कहता हूँ कनेक्ट मी टू सोर्स एनर्जी। कभी भी आप नोटिस करना,
ये पावर कब आएगी? जब आप इन्फिनिटिव सोर्स से जुड़ोगे। और इन्फिनिटिव सोर्स को कितना बिलीव करते हो आपकी, आप भी वही हो। कितनी एनर्जी आप नीचे ड्रॉ कर सकते हो फिजिकल। जब हम कहते हैं कि हम लोग एनर्जी स्थापित कर सकते हैं, तो एनर्जी किसकी है? वो हमारी है क्या? ना, वो सोर्स की एनर्जी है। सोर्स की एनर्जी। कि हम सोर्स के साथ में एक समझते हैं, तो हम ऑलवेज से कनेक्ट मी विद सोर्स एनर्जी। और अभी तक मेडिटर्स क्या कहते हैं? ओके, कनेक्ट टू दिस बाबा जी, कनेक्ट टू दैट गुरु, कनेक्ट टू कनेक्ट टू दिस सब अर्थ, तो कनेक्ट टू दिस करते देव, रहते हैं। देव दिस वन। हाँ सब लिमिटेड वर्जन है। हम्म। उनके भी लाइफ में लिमिटेड, बहुत सारी लिमिटेशन थी जिनको पार नहीं कर पाए, उन्हें वापस से आना है। तो वो उस एनर्जी में खुद को क्यों स्टक करना है? कनेक्ट टू योर हायर सेल्फ, कनेक्ट टू योर सोल, कनेक्ट टू योर सोर्स एनर्जी। सोर्स एनर्जी। और ज्यादा जा सकते हो तो बोलो सोर्स की, सोर्स का भी जो सोर्स है उसकी एनर्जी। मैं तो उधर ही जा रहा हूँ अभी, मैं तो वही सोच रहा हूँ कि यार ये सोर्स प्रोग्रामर, इस प्रोग्रामर को किसने बनाया, मुझे तो वो जानना है। और जैसे ही आप मंत्र बोले ना सर, तो अपन तो एकदम वाइब्रेशन में तुरंत आज पहुंच तो हमने जाते मंत्रा भी नहीं बोला है। हैं। हाँ। हाँ आज नहीं बोला कोई मंत्र। रिलैक्स नहीं करा है, कोई कुछ नहीं करा है, आइज क्लोज से अवेयरनेस को शिफ्ट किया है, और आज पूरा अवेयरनेस का खेल था। हाँ। जी जी हिंदू जी, जी दो शब्द आपने सुने होंगे, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट। जी। जिस दिन आप अटैचमेंट और डिटैचमेंट को बैलेंस करके चलोगे, उस दिन आप अनकंडीशनल लव में जो है अपने आप आ जाओगे। जी जी पूरी फिर कोशिश कर चाहे रही हूँ। फिर चाहे वो गुरु हो, चाहे कोई हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाएं हो, चाहे बाएं हो, चाहे अंदर हो, चाहे बाहर हो, जी 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 you will always be in unconditional love when you start balancing your attachment and detachment. जी। देखो, इस सेशन में मैं आपको हमेशा से बोलता हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके आर्टसेल बोल रहे हैं। पता नहीं आप कितने लोगों ने नोटिस करी है। आपको क्या लगता है मैं वो बोल रहा हूँ? मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप ड्रीम स्टेट में हो, मैं रियलाइज कर चुका हूँ कि मैं ड्रीम स्टेट में हूँ। और मुझे ये भी पता है कि मैं आपकी ड्रीम में एक कैरेक्टर बन के आ रहा हूँ, मुझे ये भी पता है। तो जब मैं आपके ड्रीम में एक कैरेक्टर बन के आ रहा हूँ, तो ये आपके हायर सेल्फ है जो मुझे दिखा रहे हैं, जैसा भी दिखा रहे हैं। मुझे थोड़ी पता है जो मैं हूँ वही दिखा रहे हैं, कुछ और दिखा रहे हैं, मुझे नहीं पता। आपने जो वर्जन अटैक किया वो आ गया, किसी और ने कोई और वर्जन क्रिएट किया, तो मैं करने वाला हूँ क्या? फिजिकल रिलेटिव वो शिफ्ट कर रहे हैं, मैं कौन हूँ? मेरे को एक बार ये फिजिकल एक्सपीरियंस हुआ था कि देर इज वन पर्सन, ही वॉज इन अ कोर्ट, एंड ही वॉज लाइक लुकिंग फॉर सम गाइडेंस, एंड ही saw me in the court। मैं तो नहीं था फिजिकल रिलेटिव, मैं तो इधर ही था। फिर एक मोहतरमा, एक बहुत डिवाइन सोल आई, उन्होंने बोला दे वर टॉकिंग टू द परम गुरु मंडल, एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट, आई वाज एक्सप्लेनिंग देम। एंड उन्होंने कभी मुझे नहीं देखा, उन्होंने मुझे बताया परम गुरु मंडल, फिर मुझे मालूम पड़ा ये परम गुरु मंडल है कौन भाई। हाँ सर, जब मैं ध्यान में थी, स्टार्ट हुआ था 2 या 3 साल हुआ था, मैं ध्यान में थी। 5 लोग आए हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि परम गुरु मंडल चलोगी क्या। तो मैं आंसर नहीं कर रही हूँ सर, उनको कुछ नहीं बोल रही हूँ। फिर से पूछा उन्होंने एक बार कि आप हमारे साथ चल रही हो परम गुरु मंडल। तो सर मेरा फिजिकल माइंड बोल पड़ा कि अच्छा ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं फिजिकल बॉडी को छोड़ के हमेशा के लिए। मैं सोच रही हूँ नहीं, मेरे तो कुछ काम है यहाँ पर, नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं बोल सकती इनको। हाँ। तो वो काफी बार आए, 3 बार आए मेरे पास और पूछते थे कि अच्छा आपको जब चलना हो तब आप बताना। लेकिन जब मैं सर से मिली और उसके बाद फिर से वो मुझसे कनेक्ट हुए, उन्होंने बताया कि परम गुरु मंडल क्या है। तब जाया गया वहां पे और दिखाया गया कि सारे गुरुजन है वहां पे। और हम सबको, हम यहाँ फिजिकल बॉडी में बैठे हैं तो हमें अर्थ के लिए यहाँ पर क्या काम करना है, इस बारे में उन्होंने बताया। और वहां पे सर भी हैं। तब मुझे समझ में आया, अच्छा मुझे तब भी बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ। मैं नहीं जा रही थी। पर जब मेरी अवेयरनेस बढ़ी, जब मुझे समझाया सर ने कि कई फिजिकल बॉडी को कुछ होने वाला नहीं है, वो ध्यान में आपकी चेतना ऊपर उठ रही है, बताया मुझे कि ये है परम गुरु मंडल। सी परम गुरु मंडल, जो ये जो होता है ना, एक एक हायर कॉन्शियसनेस पे बनाया हुआ है। जब भी आपका ओरा गोल्डन ओरा में आ जाता है, देन यू बिकम ऑटोमेटिकली स्विच टू दैट।
तो हम सबके परम गुरु मंडल में एक एक बॉडी है, वहां पे ऑलरेडी हम एग्जिस्ट करते हैं। मैंने बताया ना, हर रियलिटी में हम एग्जिस्ट करते हैं। तो आपका भी एक परम गुरु मंडल का वर्जन है जो गोल्डन ओरा में है। जी। जैसे ही आप अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करोगे, आपका ओरा गोल्डन में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप गोल्डन ओरा में बन जाते हो, देन यू आर द स्पिरिट गाइड्स फॉर द पीपल। तो ये आपकी लिमिट है। और मैं आपको ये बता देता हूं, जितने भी मैसेंजर अर्थ के ऊपर आए हैं, सब लोग अभी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं वहां तक पहुंचे। सब अलग अलग जन्म ले रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, हर बार अलग नई अवेयरनेस में शिफ्ट कर रहे हैं, अलग स्टेट कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं। और जो जितना ज्यादा फिजिकल रियलिटी में एक्सपीरियंस ले रहा है, अर्थ के एक्सपीरियंस तो बहुत काउंट होते हैं। क्योंकि जिसने अर्थ के ऊपर चला लिया, वो वैसे ही है कि चांदनी चौक कौन सा एरिया है सबसे क्राउडेड दिल्ली का, वहां पे कार चलाने जैसा है वो तो पूरा। चांदनी चौक ही। चांदनी चौक में कार चलाने जैसा है वो तो। कहते हैं ना, उस जिसने चांदनी चौक में, बोलते हैं ना, कार चला ली, समझो वो तो कहीं भी चला लेगा। तो चांदनी चौक क्या है? एक एक्सपीरियंस है जहां पर 1 इंच मूव होने का नहीं है, थोड़ा सा भी पीछे नहीं देखा, आगे नहीं देखा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। उस केओस से भी अगर आप निकाल के ले आते हो अपनी गाड़ी को, तो यू आर द रियली एक्सपर्ट ड्राइवर। अनम्यूट कर लो। अनम्यूट कर लो मधु जी। सर मैं बैठ नहीं पाई बिकॉज थोड़ा सा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, मॉम डैड सबको क्या देना होता है। फर्क पड़ता है, क्या तो फर्क बट पड़ता आई काम तो कर स्लेप्ट रही फॉर 10 मिनट्स, जब तक आपने जंप बोला वर्ड, उसके बाद उठना पड़ा। फिर मैं वही कर रही थी, आई वॉज बिजी विद दैट, बट आई वॉज कनेक्टेड। तो इसीलिए दैट्स व्हाई मैंने बोला बाद में मैं इसकी रिकॉर्डिंग सुन के बैठ जाती हूँ। अब पहले मुझे ये बताओ, आपको एयर सेल्फ क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे? और हर सेल्फ यही मैसेज देना चाहते हैं टू शिफ्ट फ्रॉम व्हाट यू आर हैविंग दिस टाइम, द कॉन्शियसनेस यू रेज दैट। लाइक आपने बोला कि जो भी हम ये गोलियां खाते हैं ऑल दैट, वो हमने ही वो उसको किया हुआ है। देर इज दैट लिमिटिंग बिलीफ कि नहीं हो सकता जब तक नहीं खाएंगे। तो टुडे आई गॉट द मैसेज कि हम कर चुके हैं थ्रू दिस। हमने ऑलरेडी वी हैव लेफ्ट दैट एंड वी हैव रेज्ड आवर कॉन्शियसनेस टू दैट शिफ्ट। और आपके एयर सेल्फ का एक और मैसेज था, और भी वो आपने सुना कि ध्यान, फोकस, कहाँ था फोकस? फोकस तो वो मैं सुन रही थी आपके, वो जो आप बोल रहे थे, लेकिन डिस्कनेक्टेड हो रहा था। बट फोकस कहाँ था, तो इंटरनली भी फोकस कहाँ था? तो भी फोकस अपने पे ही था, हायर सेल्फ पे ही था। तो तो आप ध्यान की नई टेक्निक सिखा दी आपके एयर सेल्फ ने। अच्छा, हाँ, खुली आंखों से भी करना है। कहाँ पे हो? यस, यही मैं बोलने वाला था कि जो आप काम कर रहे हो उसको बैलेंस बना के चल रहे हो, उसमें चलते रहो। सब कुछ एक साथ करने का है कि आपको वो भी देखना है, वो भी देखना है, तो ध्यान भी करना है। तो ध्यान खुली आंख से भी करना है और ध्यान मग्न होके भी करना है। तो जो काम आप करो ध्यान मग्न होके करो। तो सर आपने क्यों अपनी विंडो बंद रखी है आशीष सर? कहाँ रखी है? देखो खुली तो है, टाटा कर रहा हूँ नहीं, तुमको, नहीं, ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। मुझे तो पत्री जी दिख रहे हैं आपके उस पे। वो इसलिए दिख रहे हैं कि जो है कि वो मेरा मोबाइल चालू है, वो मोबाइल से बात कर रहा हूँ, उसकी खिड़की बंद है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और जो ईयरफोन है वो चार्जिंग में लगा है, इसलिए उसका ऑडियो बंद है, उसकी खिड़की खुली है। तो ओके। डबल काम एक साथ चल रहा है मेरा। और कौन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? वैशाली जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब वाकई गुड मॉर्निंग सर हुई। आवाज, वो मैंने ईयरफोन लगाई ठीक से। सर मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। बोलिए। मधुर आवाज गायब हो गई। आप है ना, वो हटा दीजिए हेडफोन को, डायरेक्ट बोलिए मोबाइल पर।
आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। हेडफोन को उसको हटा दीजिए। तो बहुत अच्छा लेसन मिल रहा है, तो थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक। यू दीदी। थैंक यू आई। मम्मी बोल दीजिए। मम्मी बैठे हैं, सर मम्मी को भी नमस्ते। मराठी में बोल रही है। अच्छा मम्मी, मम्मी आपसे बात कर रही वैशाली थी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मजा आया? बहुत मजा आया। कितना? कितना? बहुत बोल रहे हैं। मजा आया? तड़के पे तड़का। कितना मजा आया? हेलो हाँ बोलिए। सर, मुझे आवाज नहीं आ रही थी। हेलो। कोई जो बात सुनने वाली बात होती है उसी की आवाज आती, बाकी नहीं आएगी आवाज। ये उसको सुनना नहीं है आपको। आपके आईएएस सर कहते हैं कि वही बात सुनो जो आपको सुननी है, बाकी नहीं सुननी। और छोटी वैशाली ने ध्यान किया कि नहीं किया दीदी? करती है दीदी, छोटी बच्चे में ध्यान। वो रात को सोते समय करती है ध्यान। वेरी गुड। हम्म, देखो, ध्यान का मतलब होता है फोकस। फोकस यानी अवेयरनेस को एक जगह फोकस करना। हाँ तो अवेयरनेस को फोकस करने के लिए आपको किसी भी पोजीशन में अच्छा होता है। जी मैं सर। कल पूनम जी हम यही बात कर रहे थे कि मैं बचपन में जब पढ़ाई करता था ना, तो ऐसा हाँ पिल्लों का पूरा एक बना देता था चारों तरफ, और उसके अंदर बीच में मैं स्टडी करता था। तो सबका अलग अलग है ध्यान करने का तरीका। किसी को टांग ऊपर करके पढ़ने की आदत है, किसी को पैर हिला के पढ़ने की आदत है, किसी को क्या है। वही आपकी सबसे बढ़िया ध्यान की टेक्निक है, जहां भी आप अवेयरनेस को स्थिर रख सको, फोकस को बनाए रख सको, वही आपकी ध्यान टेक्निक है। तो इसलिए ध्यान अलग अलग बदलते रहो, हर पोजीशन में कंडीशन में अलग अलग ध्यान है। यस सर। तो ऐसा मत समझो कि मेरे को एक ही तरह का ध्यान हर जगह करना है। नहीं, हर जगह अलग अलग ध्यान की टेक्निक, ऑलरेडी आप हजारों टेक्निक लाखों टेक्निक ऑलरेडी यूज कर रहे हो। ऑफिस में अलग ध्यान की टेक्निक है, घर में अलग है। काट कट जो कोई कट करते हो आप उसके लिए अलग है, वेजिटेबल खाना बनाते हो तो अलग आपका। जी सर। तो अपने ध्यान के प्रकार को समझो और मास्टरी करो उनमें, ताकि 24 आवर्स में ध्यान रह सको। जो कर रहे हो उसी पे फोकस करो, वही ध्यान है। ध्यान का मतलब अवेयरनेस को आप कहते हो बॉडी को स्थिर कर लो, ये कर लो, ये कर लो। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्लासेस को हटा दो। अब मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर ग्लासेस है तो क्या दिखना ज्यादा शुरू हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या होगा? इफ यू डोंट फील इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, हाउ इट मैटर्स? क्यों क्यों ग्लासेस को भी हटाना है? बरोबर है। क्या आपको लगता है कि ग्लासेस हटाने को, और अगर सीरियसली आपको लगता है हटाना ही है, तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी मेटल की चीज अगर आपकी बॉडी पे, आपका बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बना हुआ है, हर चीज आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को रोक रही है। यस सर। तो समझिए कि एक एक पार्टिकल ऐसे घूम के आपकी पूरी बॉडी बना रहा है, आपने उसमें बीच में डिफरेंट डिफरेंट जितनी चीजें रखोगे, तो वो सारी भी उसको बनानी पड़ेगी पार्टिकल को। तो अननेसरी वो एनर्जी का बोलते हैं ना, उसको थोड़ा और ये करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसी मेटल की चीज सॉलिड है, कोई भी है, तो समझो अगर सॉलिड एक पार्टिकल पूरी रियलिटी को बना रहा है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दिस। आप में आवाज एनर्जी जो भी दिख रहा है, ये सब एक पार्टिकल घूम के पूरे ब्रह्मांड को बना रहा है, आपकी सारे उसको, इतना सारा एक पार्टिकल पूरा बना रहा है ये। तो सोचो अगर आपने एक कोई सॉलिड चीज ऐसी कोई भी अपने ऊपर रखी हुई है, तो उस पार्टिकल को कितनी देर उसके अंदर रह के और बार बार घूमना पड़ेगा, तो एनर्जी को ब्लॉक करेगा आपकी। तो आप कोई भी ऐसी चीज, क्यों कहते हैं ध्यान में लाइट खाओ? क्योंकि जितना हैवी फूड होगा, जितना उसका अंदर जो बोलते हैं ना हैवीनेस होगी, तो वो हैवीनेस भी क्रिएट होगी उसी पल में, क्योंकि हर चीज इसी पल में क्रिएट हो रही है। तो इस पल में आपने जैसे ज्यादा खा लिया, तो हैवीनेस ऑलरेडी आपके पेट में क्रिएट करना पड़ेगा, तो उस पार्टिकल को ज्यादा देर वहां रहना पड़ेगा। बैठने में भी दिक्कत आएगी, ज्यादा हेवी रहेगा खाना तो इसीलिए बॉडी पे तो आप बोल रहे हो, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्यों ग्लासेस क्या, आप देखो ना कोई मेटल की चीज भी क्यों रहना है। पहले टाइम में लेडीज को बहुत ज्यादा गहने इसलिए पहना दिए गए थे
ताकि उनकी एनर्जी हमेशा कम रहे। सर पहले ध्यान में आने के पहले मुझे पायल पहनना और रिंग्स पहनना बहुत पसंद था। मतलब एक एक उंगली में 3। क्यों साधक लोग, आपके गुरु लोग क्यों बोलते हैं कॉटन? क्योंकि कॉटन की जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई होती है एज कंपेयर टू अदर, तो इसीलिए। तो पूनम जी आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। सर मैं बोल रही यस, थी कंटिन्यू। कि मुझे ना सर उंगलियों में ज्यादा से ज्यादा अंगूठियां पहनना और पायल पहनना, ये दो चीज बहुत पसंद थी। और वो पायल टूट गई तो मुझे तुरंत चाहिए ठीक करके, या नहीं चाहिए। तो मैं ध्यान में आई ना, उसके बाद सर वो मुझे ऐसे लगने लग गया कि मुझे नहीं पहनना है, ये अंदर से ही आ रहा था। मुझे दिक्कत हो रही है, मेरी एनर्जी कहीं तो भी स्टक हो रही, तो मैंने पायल निकाल के रख दी सर। और जो अंगूठियां पहनती थी वो भी रख दी, और उसके बाद मुझे ऐसे लग रहा अब मुझे बहुत अच्छा लाइट फील हो रहा है, नहीं पहनना है मुझे। तो मेरी ये दो चीज पूरी तरीके से छूट गई मेरी सर, अब इच्छा भी नहीं होती है, ना ध्यान में ना ध्यान के बाद कभी। ओके, जी। वेरी गुड। तो हम समझ गए ना? सर ये जो प्रेशियस स्टोन्स पहनते हैं, रुद्राक्ष पहनते हैं, इविल आई बीड्स पहनते हैं, इनकी कुछ सिग्निफिकेंस है सर? बताइए आपको क्या लगता है? साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो है, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं वाइब्रेशंस, देखो, जो कि प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ वो कनेक्ट करते हैं। जैसे हर एक स्टोन का बताया जाता है कि वो एक प्लेनेट के साथ कनेक्टेड है। सैफायर है, नीलम है, तो ठीक है, अलग अलग है। आपको यहीं पे आंसर दे देता हूँ। इसके बाद की सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। जी। क्रिएटर आया, उसने क्या किया, एक रियलिटी क्रिएट करना शुरू किया, क्योंकि उसको ये मालूम पड़ गया कि एलिमेंट की जो भी तत्व है फिजिकल रियलिटी में, उनकी कोई कॉन्शियसनेस होती नहीं है। एलिमेंट्स की। यस, कोई भी तत्व, किसी की भी, चाहे वो कोई सा भी तत्व हो, उसकी कोई अपनी कॉन्शियस होती नहीं है। तो उन भाई साहब को जब ये मालूम पड़ा, तो उन्होंने क्या काम करना शुरू किया, किसी ने, क्रिएटर डिवाइन सोल ने, उसने बिलीफ बनाना शुरू किया कि ये वाले से इस प्लेनेट का, ये वाले से उस प्लेनेट पे। फिर लोग उससे एग्री करते गए, और वो एक, बोलते ना, लोकली एग्रीड वो बन गया। और उसके बाद में, क्योंकि हमने उसके अंदर ऑलरेडी वो बिलीफ मान लिया है, और अब कोई भी कहता है ये पहनने से ये होता है, ये होता है, तो उन्होंने ये सब करना शुरू कर दिया। और जब सब लोग उसकी उसी में वाइब्रेशन में बहने लगे, कोई कहता है मूंगा पहनने से होता है, दूसरा कहता है मुझे फायदा हुआ, वो कहता है मुझे फायदा हुआ, उसने पहना उसको फायदा हो गया। लेकिन जैसे ही उसको किसी ने बोला ये पहनने से ये होता है, दूसरे ने कह दिया मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, और आपने उस पर बिलीव करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को बताओ, मूंगा असर कर रहा है क्या आपको? सर आपका विचार, आपके कॉन्शियसनेस जिस तरीके से काम करेगी वो चीज वैसे काम करने लगेगी। पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो वो पॉजिटिव हाँ, है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी तत्व होता है, आपको पता है, पानी पीते हो आप, जो रेकी करते हैं उनको ये बहुत अच्छे से मालूम है। हम्म। एक जापानी साइंटिस्ट ने इसके ऊपर ये भी किया था कि जल का तो खुद का भी कुछ नहीं है, वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस नहीं होती है, उसको आप जो कॉन्शियसनेस दोगे वो ले लेगा। तो जापानी साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट किया, एक पानी को वहां लगा जहाँ नेगेटिव टॉक होता है एक दूसरे को, हेट मतलब जी। हेट, जी। और एक जगह लव की एनर्जी है। ये जी जी। मसारो 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 इमोटो। इमोटो। हाँ। तो यस, दैट इज व्हाट इट इज। तो अब आप मुझे बताओ, आप क्या कर सकते हो? मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपकी कॉन्शियसली आप सोचो और दूसरा आप पे बिलीव करता है। ऐसा भी होता है मैम कि अपन ने दो प्लांट्स लगा लीजिए, एक के पास जाके आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं, उसे लव की एनर्जी दे रहे हैं, तुम बहुत अच्छे हो, जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं उतना बोल रहे हैं, और दूसरे के पास जाके अगर आप निगेटिव बोल रहे हैं तो आप देखेंगे कुछ दिनों में जो जिसके पास नेगेटिव बोला गया ना वो झाड़ सूख जाएगा। जी जी। जैसे इतनी शब्दों की पावर है अपने। पावर है। ये कल किया गया, मैंने खुद में भी किया था। तो मैंने पानी रखा था,
और पानी में डाले थे, चावल डाल के रखे थे। हाँ। और एक अपने अलग अलग दोनों को रख दिया था खिड़कियों में। और एक के ऊपर लव लिख दिया था, एक के ऊपर हेट लिख दिया था। हम्म। और रोज जाकर मैं लव वाले को लव एनर्जी देती थी, हेट वाले को हेट। तो जिसको हेट एनर्जी दी थी ना, वो पूरा उसमें फंगल लग गए, ग्रीन ब्लैक। और ओ। जिसको एनर्जी दी थी वो एज इट इज था, जैसे का वैसा था। हाँ। समझ में आ गया बहुत अच्छे से कि मैंने प्रैक्टिकली खुद किया। तो शब्दों की क्या वाइब्रेशन होती है हमारी। वाइब्रेशन। तो अब आप मुझे बताइए, क्रिस्टल का जवाब दीजिए। सॉरी, मैंने आपका जवाब नहीं दिया, आप बताइए क्रिस्टल का क्या है। फिर वो आपके आपके बिलीफ सिस्टम पे ही काम करेगा वो भी। आप जो ऐसा सोच रहे हैं वो हर चीज वैसे ही काम कर रही है। कई लोग कितना सारा पूरा हाथ में पहने हुए हैं, पूरा अंगूठियां कितनी सारी पहने हैं, पर जब बात करेंगे तो फिर पता चलता है एनर्जी कैसे। ऐसा भी होता है ना। आखिर जी। म्यूट कर दीजिए आप। आप ही क्रिएटर हो, जो चाहोगे वो क्रिएट कर ले जाओगे, फिर चाहे अंगूठी पहनो, चाहे बालियां पहनो, चाहे कुछ भी पहनो। यस। आप, ऐसा कोई रूल नहीं है, कुछ 5-6 रूल के अलावा सब कुछ चेंजेबल है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। तो अब आप मुझे बताओ क्या करना है। ये आपका नेक्स्ट लेवल है, जिसपे हर कोई इंसान जा सकता है कि मुझे और क्या क्रिएट करना है, इसके भी बियॉन्ड जाना है। मेरे को इसके भी बियॉन्ड जाना है, मुझे इसके भी बियॉन्ड जाना है। जैसे मैंने तो अपनी इंटेंशन सेट कर दी, जिसने क्रिएटर को बनाया मुझे तो उसको जानना है। तो आप सोचो मैं कहाँ की सोच रहा हूँ। ये भी पूरा ठीक किया है, वो भी प्रैक्टिकल सबके सामने। भैया हमारे गुरुजी आ गए हैं, खिड़की खोल लीजिए। 14 लोग की यात्रा कल कराई है इन्होंने मुझको। 14 का इम्पोर्टेंस, 14 की एनर्जी, 14 का खेला। किशोर सर, किशोर सर, खिड़की खोल लीजिए। अपनी खिड़की खोल नमस्कार के सर, दूसरों की नमस्कार। खिड़की खोल दो। अपनी खिड़की खोल के दूसरों की खिड़की खोलने आ गए। हाँ बोलिए सर। हेलो। बस आपकी, बोलिए ना, आपका टाइम है बोलने का। हाँ सर, सुनाई दे रहा है मेरा बात? बिल्कुल अच्छे से। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। आपकी मधुर आवाज सुनना था उनको, वो भाग गए फिर। ऐसा कुछ नहीं सर। और और सर? क्या चल रहा है सर सब। आप मणिकर्ण आ रहा है सर? मैं तो वहीं पे हूँ। वाह, बहुत आनंद की बात है। मुझे ये आवाज सुनना चाहता हूँ। जो सुनना चाहते हैं वो सुनाई जा रही है आपको। बढ़िया बढ़िया यू बढ़िया। आर द क्रिएटर। आपके ऐसे वही सुनाएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। क्रिएट करो अपनी रियलिटी, क्रिएट करो किस किस को देखना चाहते हो। बस है सर, पूरा है हमारा। पूरा धरती को स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। बनाना नहीं है, बन गई धरती ऑलरेडी। स्वर्ग है, आप सोच लो स्वर्ग है, अट्रैक्ट हो जाओगे, पहुंच जाओगे वहां। एग्जैक्टली सर, उसका है हर चाइल्ड में। अभी हम सब लोग का फिजिक्स। हमारे एक ही हमारा पीएसएस मूवमेंट में 3 विजन है सर। एक तो है आपको, मेन विजन है सबका इसी जन्म को आखिरी जन्म लाने के लिए, उसको पर्दा अपना खोलने के लिए मौका देना। दूसरा होता है हमारा वसुधैव कुटुंबकम की निर्माण है। सबका पास है एक ही, भेदभाव नहीं होना है, अभेद स्थिति में सभी लोग मिलके एक ही जैसे रहना है, उसको आनंद स्थिति में। फिर हमारा तीसरा है वन वननेस, वन अर्थ, वन फ्यूचर। वही हमारा पीएसएस मूवमेंट की मेन निनाद है। इसके अच्छा, लिए हम जागा जागा कर रहा है। इसके लिए अवेयरनेस है, पिरामिड एनर्जी और थ्रू मेडिटेशन, थ्रू अद्वैत ज्ञान से लोगों को अवेयरनेस लाना है बस। आपको पता है किशोर सर, अद्वैत नहीं होता है। अद्वैत होता है नहीं होता है, अद्वैत को ऊपर मेरा पूरा ज्ञान है। सुनो ना मेरी बात, हम्म। ट्रिनिटी होता है।
यूनिटी मतलब वननेस है, और क्या है? वननेस इज अद्वैत है। ड्यूलिटी इसलिए क्रिएट की गई है ताकि आप नेगेटिव पॉजिटिव में फंस जाओ, हम्म। लेकिन असल में होती है ट्रिनिटी। परमात्मा बनना है तो वो जो तीसरा है ना, वहां स्थिर रहना पड़ता है। एग्जैक्टली सर, परमात्मा बनने के लिए थोड़ा लोगों को, आपका जैसे लोग बाहर आ गया तो परमात्मा बनने के लिए एक मौका मिलेगा ना। लोग घर में आपने बैठने से कैसे आएगा? आपने 6 9 का वो देखा है कि एक ट्राइंगल हाँ। देखा है? कौन सा ट्रायंगल है? एक ट्राइंगल होता है जिसके ऐसा एक जगह 3, एक जगह 6 और एक जगह 9 लिखा हुआ है। अच्छा। 3 6 9। 3 6 9। हम्म हम्म तो वो है ट्रिनिटी, ऊपर वाला पॉइंट जो 9 बोलते हैं, जहाँ पे हम्म 9 हम्म कंप्लीट हो गए आप। हम्म तो वो पॉइंट होता है वो। तो हम्म इसलिए फैलाई गई थी पहले, ड्युअलिटी की बात इसलिए की गई थी हमारे एंशियंट टाइम में बुक्स के अंदर, हम्म ताकि लोगों को पहले इससे बाहर आए, क्योंकि उस हम्म क्लास वहीं तक ही पढ़ना था। हम्म इसलिए उसमें ट्रिनिटी, हम्म कि आप अब वो 9 पे जाके बैठो, हम्म परमात्मा बनो, आत्मा स्वरूप बनो। हम्म तो अभी जो रियल में जो एग्जिस्ट करती है वो है ट्रिनिटी, जो इस हम्म रियलिटी में एक्सपीरियंस करना है हमें, हम्म तो की जगह बैठना है। हम्म तो अभी आज से ट्रिनिटी के ऊपर, परमात्मा स्वरूप के ऊपर, कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही क्रिएटर हूँ, और बाकी हम्म 3 6 ये मेरी मदद करने के लिए था। हम्म कि आप जब भी बन सकते हो जब आप खुद के इनर में जाते हो, बाहर वालों के हम्म इनर में नहीं, खुद के इनर में जाते हो। तो हम्म आज हम्म इनर में जाओ और अपने उस 9 को ढूंढो। और हम्म ये होगा जब आप 3 और 6 ड्युअलिटी से ऊपर उठेंगे। ट्राइंगल ऐसा होता है, देखो देखो यहाँ पे गुरुकुल शिक्षा में देखो, आशीष सर की स्क्रीन पे क्या आ रहा है? ट्राइंगल आ रहा है। तो ट्राइंगल जब भी आता है जब आप 3 6 से बाहर निकल करके, 3 6 मतलब ये फिजिकल वर्ल्ड जो है आपका, इस फिजिकल में जो भी इमेजेस है, जो भी नाम है, जो भी ये, इन सब से ऊपर उठ जाना है आपको। और ये हम्म समझना है, तब वननेस आता है। अगर आपके हम्म दिमाग में अभी भी ग्रुप है, आपके दिमाग में अभी भी अलग सेपरेशन है, आपके दिमाग में अभी भी ये है, तो इसका मतलब है अभी भी आप 3 6 डुअलिटी वाली स्टेट में रहते हैं। और जब 9 के बाद कौन सा नंबर आता है? क्या हुआ? 9 के बाद 9 के एक बाद आता है। यस, वननेस एक होता है। एक नंबर वननेस का होता है। हम्म हाँ। तो इसलिए आपको हम्म अभी मुझे बताओ कि जो डिवाइन सोल है किशोर सर, हम्म का मिशन क्या है? हम्म ग्रुप का मिशन सुन लिया, हम्म आसपास के लोगों का मिशन सुन लिया, हम्म ये सुनना है कि जो डिवाइन सोल हम्म का मिशन क्या है। कहाँ? हम्म 3 6 में अटक जाना या 9? हम्म हम्म आपकी। ये 9 पैर होता है ना? आपको एक चीज हमेशा सबको याद रखना है, जब हम्म तक आप खुद ड्युअलिटी में रह रहे हैं, आप हम्म अगर बोल भी देंगे 9 की हम्म हम्म बात, नहीं क्यों? क्योंकि आपकी रियलिटी में कुछ भी हम्म से मानने के पहले आपको अंदर खुद बिलीव करना पड़ेगा कि वननेस है। और जब आप वननेस में आ जाते हो तो उसके हम्म फिजिकल वर्ल्ड का कोई अटैचमेंट नहीं मतलब ही नहीं है, रहता। जानता है। और अगर मतलब है, मतलब अभी भी हमें काम करना है। एग्जैक्टली। एब्सोल्युटली सर, आप जो बोल रहे हैं 100% सही है। जो कॉन्शियस, सुप्रीम कॉन्शियस में है, जी त्रिगुणातीत होता है। त्रिगुणात मतलब है 3 गुण होता है: जीव गुण, जगत गुण, ईश्वर गुण। ये तीनों गुण है। गुणातीत बहुवचना है। जीव की एक लक्षण दो होता है, नाम रूप के होता है। जगत के लक्षण होता है, पंच तत्व के होता है। ये ईश्वर के तो होता है इंटेलिजेंस, जो बोलता है स्फुरन और फीलिंग, और ये जो होता है ना, वो ही होता है। ईश्वर की है हमारा अक्ल, जहां से शुरू होता है वो होता है। वो तो उसका बाद ही सिंपल कॉन्शियसनेस है, और कुछ नहीं है। तो वहां पर कुछ बोलने के लिए नहीं है, देखने के लिए नहीं, सिर्फ ओनली हैपेंस इज हैपेंस। किशोर सर, हम्म काम करो, जितना भी बुकिश नॉलेज आपने लिया ना, हाँ।
बुकिश नॉलेज कम लेता मैं किताब पढ़ने वाला नहीं है बिल्कुल, नहीं है ना। और किताबी भाषा भी यूज नहीं करता हूँ। जितना भी बुकिश नॉलेज लिया है, जितना भी इधर हम्म उधर से सुना है, हम्म जितना भी आपने जहां से भी ग्रहण किया है अभी तक, इस पल तक, हम्म कि हम भी हम्म 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 जो भी आपके सामने लोग हैं, जो भी हम्म मिशन है, जो भी हम्म वर्ल्ड में हम्म जो भी है, हम्म जो भी मिशन है, हम्म उस सबको मिटा दो। हम्म पूरे कप को हम्म उल्टा कर दो। हम्म और उसके बाद में एक जो जीरो स्टेट आती है आपकी, कि कुछ भी नहीं है वहां पे। हम्म। वह सरेंडरनेस होना बस। और जब आप फिर उसके बाद आप लिखो कि आप, हर इंसान के लिए, ये किशोर सर के लिए नहीं है, फिर आप लिखो कि आपको कहां पर होना है, वही लिखो, बाकी सब हटा दो। फिर इस बोर्ड पे वही आना चाहिए जो आपको जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। अगर वहां पे कुछ आ गया तो वो भी आपकी रियलिटी का हिस्सा है फिर वो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली तो आप परफेक्ट। पूरा कप खाली कर दो। जो भी आपने हम्म अभी सुना, वो सुना या उधर सुना, और हम्म एक गुरु है आपका, हमेशा याद रखना, हम्म जिसको पता है आपको कहाँ पर जाना है, कहाँ पर होना है। वो है आपके, हम्म आपकी सोल। हम्म हम्म और वो सोल डिवाइन से कोई अलग नहीं है। एग्जैक्टली वही है, आत्मा ही परमात्मा है। तो उसी से, उसी पे विश्वास करना है। इस बोर्ड पे ना वही लिखना है, नाइन, यानी परमात्मा और मैं परमात्मा हूँ, बात खत्म। इसके बस बस बस। अलावा उधर करनी नहीं है हमें। एब्सोल्युटली है, दिस इज रियल स्पिरिचुअलिटी। जो भी वहां पर कोई भी है, बी इन दैट स्टेट। बस विजन मिशन एम्स ऑब्जेक्टिव से सभी है, ये सिर्फ 3 डायमेंशन की 5th डायमेंशन वर्ल्ड है। वो विदाउट डायमेंशन कंप्लीट जीरो डायमेंशन, दैट इज कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियस परमात्मा का सिर्फ जीरो कॉन्शियस। परफेक्ट मैसेज सर, परफेक्ट मैसेज, थैंक यू। क्लैरिटी है। मुझे आप जो बोल रहे हैं उसमें तो बिल्कुल जो भी डाउट नहीं है, हमको समझ गया पूरा। जिस लेवल से बोल रहा है वो लेवल में मैं समझ गया हमें। तो फिर अप्लाई करिए। एप्पल है तो है, उसे उसे करना होगा तो फिर भी अब ड्यूअलिटी में है। करने वाला है, करवाने वाला कौन है? एक्सेप्ट करना बस। यस, आई अच्छा एम दैट, अच्छा, एक दैट बात, आई एम, किशोर सर, दैट्स यू, ये यू बात एम, अभी यू आपको एम आल्सो, आई एम दैट। किशोर सर, अभी हाँ जो मैंने आपको बताई, वो बात किसने बताई आपको? हाँ, किसने बताई? ये तो सर कब से सुनते रह रहा हूँ, आपसे नहीं है, बहुत सालों से सुन रहा हूँ। ये बात आपको किसने बताई? एक नाम बता दो। मुझे पत्री जी ने बताया, क्लियर कट है। पत्री जी है, पत्री जी एक ही है, रावण महर्षि बोल रहा है हु एम आई। पत्री जी बोल यू आई एम, बस मैं ही आप हूँ, आप ही मैं ही हूँ बस। तो नेक्स्ट लेवल ठीक पे, है, रावण महर्षि क्या बोला है? हु एम आई, मैं कौन हूँ। पत्री जी जो बोला है, आप ही मैं हूँ तो आपने बस। रविंद्र ऋषि को क्यों नहीं चुना वहां पे? हाँ, उनको क्यों नहीं चुना यहाँ पे? किसका, किसको? आपने, जब मैंने बोला एक नाम बताओ, हाँ हाँ, उससे पहले बोला कौन से ऋषि पत्री, ने? पत्री जी है हमारा अल्टीमेट पत्री जी, ओनली वन पत्री जी बस। सबका बस है, हमारा जो भी सुनता है कोइंसिडेंटल के लिए है। यहाँ पर जो बोल रहा है वो सेम टू सेम उसको पकड़ के मैं कंपैरिजन देखते रहता हूँ। हाँ सही है नहीं है, सही है नहीं है, बस। इसमें जाना नहीं जाना, इसमें जाना नहीं जाना। ओके। ब्रह्मसूत्र को भी, उपनिषद को भी, वेदों को भी, स्वामी निसर्गदत्त को भी, ओके, नया नया रमन पत्ता महर्षि की, ओपन करें। कृष्ण मूर्ति की, जितना भी है हम लोग सुनता हूँ, मतलब कंपैरिजन करता हूँ। यस, ये पत्री जी का जो बोला है वही बोल रहा है क्या? ठीक है, वही बोला तो हैट्स ऑफ। वो नहीं होगा तो हम दूसरा देखता रहता हूँ, किशोर सर, तो कमेंट नहीं करता हूँ। आगे का देखें, हाँ बोलिए सर। थोड़ा आगे बढ़े अंदर इसमें। हाँ बढ़ाइए सर। ठीक है ना? हम्म अब एक काम करो, हम्म आप पंडित जी से कनेक्ट होते हो विजुअल्स में या कहीं भी? हमेशा है वो, मैं ही पत्री जी हूँ, ऐसा फील होता है हमेशा। अभी देखो, यहीं पे रहना, आप ही पत्री जी हो। हम्म ठीक है। अब हम्म आप ये बताओ, क्या किसी ने आपको ये भी बताया कि आप ड्रीम स्टेट में हो? हाँ, ये वॉकिंग ड्रीम्स स्लीपिंग ड्रीम्स दो ही होता है हर इंसान को। तो किसी ने आपको ये भी बताया होगा कि ये जीवन एक
ये जो भी हो रहा है सब माया इल्यूजन है और सब ड्रीम स्टेट में ही हो रहा है, ये भी सुना होगा आपने कहीं? ये है अलग अलग का वर्जन है, सबका अलग अलग वर्जन है आपका उसमें। वचन है, जो भी आपका है वचन। हाँ बाकी इसमें। आप तो मानते हो जो हाँ आप इसको हाँ, अलग अलग वर्जन है। मैं तो मेरा आप मेरा मान्यता है, मेरा प्रतिरूप है, अलग कुछ नहीं दिख रहा है। जो भी दिखता है मेरा प्रतिरूप है बस। तो अगर आपको कोई बोले जाए कि एक चुनो तो किसको चुनो? हम्म। आपका कौन सा वो है? पत्री जी और पितरी जी के अलावा कुछ नहीं है। ओके। तो पत्री जी इतना, मैं पत्री जी के साथ इतना सालों से कर रहा हूँ, पूरा क्लैरिटी आ गया, मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग हो गया, मुझे हर चीज आप समझा दिया आप था। आप 100% श्योर हो कि आप पत्री जी को फॉलो करते हो? 100% है, 200% है। कभी आपको पत्री जी ने ये बोला कि तुम्हारा और मेरा यहीं तक का नाता था, बस खत्म, इसके बाद में कौन तुम कौन अलग अलग बोले? ये तो हमेशा बोलते रहते हैं बस। यस, फिर आप एक बात बताओ, सुनने हम्म। के बाद भी उनकी बात आज तक नहीं माने और कहते हो कि मैं पत्री जी हूँ। हाँ एब्सोल्युटली, वो फिजिकल वर्ल्ड में जो भी बोलता है ना वो आप हम आप आपका एक क्वेश्चन बार- जूअल वर्ल्ड में आएगा तो जूअल वर्ड आएगा, जूअल शब्द आएगा। वननेस में आएगा तो वननेस के बता दूंगा। यहाँ पर मुझे एक ही जानता है। हाँ यहाँ पर जितना भी ढूंढेगा उतना कंफ्यूज होगा। जो आपका पर्पस भी लिए भगवान है जो भी है, अपना पर्पस की जो मिशन होता है करते रहो, जुड़ते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे जोड़ते रहेंगे, ये सब तब तक आपका सुप्रीम कॉन्शियस के साथ एक हो जाओ, तब तक ये चलते रहते हैं। ठीक है, तो आप एक काम करना, हम्म। खुद ही, आपको हम्म। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम्म। अगर आप कहते हो आप ही पत्री जी हो, हम्म। जो भी पत्री जी ने कहा है आपको, हम्म। एक एक शब्द को एज इट इज फॉलो करो, और उसके अंदर हम्म। बिटवीन द लाइंस हम्म। बोला है उसको हम्म। follow करो, और आपको वहां पर बोलते हैं ना रास्ता मिल जाएगा। आप हम्म। हम्म। रास्ते से हम्म। हम्म। तो आप एक काम करिए, जो भी आपने बोला है अभी, और अगर हम्म। आप मेरी बात को सुन पाए हम्म। तो उनको कंपाइल करके खुद ही देखिए, हम्म। और देखिए इसका क्या मीनिंग है आपके लिए। एब्सोल्युटली पत्री जी मुझे एक ही बोला है, मेन मिशन एडवेंचर, स्पिरिचुअल में एडवेंचर होता है। मैं लगभग है, मैं पत्री जी जहाँ बोलता वहां चला जाता हूँ। मुझे कुछ ऋषिकेश का पता नहीं है। मैं साउथ इंडियन का आंध्रा की एक छोटा बनिया की परिवार है, हम छोटा बिजनेस करते रहता हूँ। जब से पत्री सर के साथ जुड़ने शुरू हो गया था, किशोर तुम यहाँ जाओ वहां जाओ इधर जाओ उधर जाओ, बस चलते रहा। कुछ पैसा नहीं माना है, एड्रेस नहीं माना है, कोई रेफरेंस नहीं माना है, कोई कुछ भी नहीं माना। वहां पर सीधा पैराजूट जैसे जैसे उतरता है ना, उतर के वहां पर काम करना आगा। ठीक है। लद्दाख में, लद्दाख चलो लद्दाख में काम करके आया, ऋषिकेश चलो ऋषिकेश में पैराजूट जैसे उतर के आया, गुजरात चलो गुजरात चल के आया। बस कौन आएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट कौन देंगे, मेरा बात सुनने वाला कौन आएगा, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं सुनता। बस मैं चल पड़ा हूँ, आया आया नहीं आया नहीं, तो मैं तो करना है बस। एटीएफडी से सक्सेस, प्रयास ही है, विक्ट्री है बस। गुड। तो हम ये कहते हैं कि किशोर सर इक्विवेलेंट टू पत्री जी, करेक्ट? एग्जैक्टली। ओके, हम्म। ठीक है। तो उन्होंने जो भी बोला है, हम्म। उन्होंने जो भी बोला है एक बार उसको दोबारा से अपने माइंड में लेके आना, और हम्म। उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना। देखो पत्री जी, आपके अंदर वाले पत्री जी आपको और भी कुछ बता रहे हैं क्या, वो आप खुद ही देखना, खुद ही समझना, क्योंकि ये जर्नी हमारी खुद की इनर जर्नी है। एग्जैक्टली सर ने जो बोला है, ये गंगा की तट पर बोला है, ये मेरा बेटा है, मेरा बाद ही ये मेरा काम ये पूरा संभालेगा। ठीक है। बाद में चलते सब पूरा हिमालय का ख्याल रखता हो। यही कॉन्शियसनेस है। जो बर्फ दिखता है, ये बर्फ नहीं है, कॉन्शियसनेस है, ये साक्षात चैतन्य है। ठीक। इसको हमारे माइंड लेवल में ये फिक्स करो। ये वहां देखने के लिए कुछ है ही नहीं है, फिर भी आपको दिखता है। बर्फ तो दिखता है ही नहीं है। बस है, यही चैतन्य होता है, यही कॉन्शियसनेस है, यही समझो। इसके लिए तुमको वो उसी लेवल में ले आना, लोगों का सबको ले आना, मेडिटेशन करवाना, वननेस में लाना। कॉन्शियसनेस में क्या होता है, बर्फ जैसी है ही नहीं है, नहीं है ये।
वो बोलता है ना आप लोग का। हाँ, ये को एग्जाम्पल देता है और सोना और आर्मेंट्स और सांप और रस्सी, बहुत कुछ एग्जाम्पल्स देता रहता है। मिट्टी और बर्तन, बर्तन है बर्तन नहीं है, वो मिट्टी का जो भी है बनता है वो नहीं है, मिट्टी है। ऐसी समझो ये कॉन्शियसनेस की एक एग्जैक्टली आप जो है, स्नो दिख रहा है ही नहीं है, है ही नहीं है, नहीं है। ऐसे ही इसको फील करने के लिए चैतन्य की स्वरूप से अब कहाँ पर भी जो दिख रहा है वो नहीं है, ये समझो। हमेशा उसको कॉन्शियसनेस देखने के लिए इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स है माइक्रोस्कोप से में जैसे देखता है ऐसे दुनिया के दिखते रहो। जब मन लगता है इधर थ्री डायमेंशन में देखो, नहीं होगा तो कॉन्शियस में देखो। कॉन्शियस में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कैसे होता है, माइक्रोस्कोप लगा के कैसे दिखता है, ऐसे देखना शुरू करते रहो। हर ओके। सेल में जैसे होता है, ओके किशोर सर, सेलुलर लेवल में देखते रहना। किशोर सर, मैं 1 मिनट के लिए सबको एक बार वो बोल देता हूँ। सो थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस। वी लव यू ऑल, वी ऑल आर वन। और इसी के साथ में मिलते हैं वापस से इवनिंग वाले